Students, welcome again. In this video we are discussing about the type of DC generator. In the previous videos we have already discussed about the two different lectures, construction of a DC machine or a generator or a motor, and the EMF equations of a DC generator. But we are discussing about the types of DC generator. Then it is generally classified into three categories, but I am indicating only two here. ठीक है. फर्स्ट इज द सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर एंड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, एंड थर्ड वन इज द परमानेंट magnet excited DC generator. Clear? But I am indicating two here. Now the self excited DC generator is further classified into three categories. First is the shunt excited, and second is the series excited, third is the compound excited DC generator. Clear? Now the questions arises, what is the mean by the self excited and separately excited? क्लियर. तो इस सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड का मतलब क्या है यहाँ पर? तो एक्साइटेशन वर्ड का मतलब है कि हम फील्ड वाइंडिंग को जो सप्लाई देते हैं, देन आफ्टर गिविंग द सप्लाई टू द फील्ड वाइंडिंग, देन द फील्ड वाइंडिंग विल बी एक्साइटेड. इन दैट कंडीशंस द फील्ड वाइंडिंग विल बी एक्साइटेड, देन इट विल क्रिएट अ फ्लक्स. क्लियर. तो ये जो फ्लक्स क्रिएट करता है उसकी वजह से हम इसको एक्साइटेड कहते हैं. ठीक है. तो नाउ शंट एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड एंड कंपाउंड एक्साइटेड. नाउ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर means कि we are connecting a separate source here to excite the field winding. So that is nothing, it's a separately excited DC generator. Clear? Now the self excited means कि जो वोल्टेज आर्मेचर में जनरेट होगा उसी वोल्टेज से आप फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देंगे. तो क्या इसका मीनिंग है कि फर्स्ट द वोल्टेज विल बी जनरेटेड अक्रॉस द आर्मेचर सर्किट एंड देन इट विल बी एक्साइटेड बाय द फील्ड वाइंडिंग. So it means this is a self-excited DC generator, but that self-excited DC generator is classified into three categories: shunt, series and compound. Clear? Now what do I mean by shunt, series and compound? You know very well how many windings in a machines or a DC machines. It will have a two different windings. First is the armature winding and second is the field winding. If the field winding is connected in parallel with the armature circuit, then this type of generator is generally known as a shunt excited DC generator. Clear? If the field winding is connected in series with the armature circuit, then this type of generator is known as a series excited DC generator. Clear? Now the shunt is here, series is here. Now this third one is the compound. If the both windings, shunt excited and series excited, if the both windings are connected in a different natures with the armature circuit, तो देन दिस टाइप ऑफ जनरेटर इज नोन एज अ कंपाउंड एक्साइटेड. तो इस कंपाउंड एक्साइटेड में क्या होगा कि शंट वाइंडिंग भी होगी, सीरीज वाइंडिंग भी होगी. नाउ दिस कंपाउंड एक्साइटेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट. व्हाट द मीन बाय लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट? अब आप इसके स्ट्रक्चर को देखिएगा. ठीक है. इसमें क्या है कि आर्मेचर सर्किट के साथ में सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और उसके बाद फिर हमने इसके पैरेलल में कनेक्ट किया है. ठीक है, शंट फील्ड वाइंडिंग को. तो इसका मतलब है कि इसकी लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया है. So that is nothing. This type of construction is generally known as long shunt compound generator because both winding is there. Clear? Now the short shunt means if the connections of the shunt field winding is like this here across the armature circuit only. Clear? Now the field winding, after the field winding is connected is here. So this type of connections is generally known as a short shunt because यहाँ पर shunt की जो length है वो थोड़ी कम हो गई है, इसलिए इसको short shunt कह रहे हैं. ठीक है. Now the compound excited DC generator is further also classified into two categories. लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट तो है ही है, उसके साथ साथ में हम इस कंपाउंड को दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज द क्युमुलेटिव कंपाउंडेड और अ डिफरेंशियली कंपाउंडेड. व्हाट द मीन बाय क्युमुलेटिव कंपाउंडेड एंड डिफरेंशियली कंपाउंडेड? तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा इसका एक स्ट्रक्चर को देखना होगा. नाउ इन अ कंपाउंड एक्साइटेड वी हैव अ टू डिफरेंट वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग्स. हमको शंट फील्ड वाइंडिंग भी है, हमारे पास सीरीज फील्ड वाइंडिंग है. जब ये दोनों फील्ड वाइंडिंग है तो दो फ्लक्स आ जाएंगे. एक फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग क्रिएट करेगा, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्रिएट करेगा. तो यदि दोनों से फ्लक्स, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है फ्लक्स, यदि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो उसका क्या होगा कि मशीन्स के अंदर जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा इट शुड बी इंक्रीज है. तो फाई टी की जो वैल्यूज हो जाएगी वो फाई एस एच प्लस फाई एस सी है. फाई एस एच मीन्स द फील्ड produced by the shunt field winding, phi SC means the field produced by the और flux produced by the series field winding. यदि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों का ऐड हो जाएगा. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट वैल्यू? इट बिकम्स phi SH प्लस phi SC. ठीक है. तो दैट इज नथिंग, इट्स अ cumulative compounded generator. Clear? Now what do I mean by differentially? Now let we have a two different fluxes there.
यदि दोनों का फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट है तो रिजल्टेंट फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा. जब रिजल्टेंट फ्लक्स डिक्रीज होगा तो दैट टाइप ऑफ कंपाउंडेड जनरेटर इज नोन एज अ डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर. क्लियर? नाउ in the next video, now the one questions arises here कि हम कुमुलेटिव और डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर क्रिएट करने के लिए हम किस वाइंडिंग के टर्मिनलों को इंटरचेंज करेंगे, शंट फील्ड वाइंडिंग के या सीरीज फील्ड वाइंडिंग के. तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइजेस होता है कि हमेशा ध्यान रखना है आपको कि यदि हमें डिफरेंशियली से कुमुलेटिव बनाना है या कुमुलेटिव से डिफरेंशियली बनाना है तो हमेशा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनलों को इंटरचेंज करेंगे बाय गेटिंग द कुमुलेटिव और डिफरेंशियली. क्लियर? ओके, थैंक यू.